Good morning, student. This is your MS subject, and today we are going to discuss lesson number 7. Don't give up. Okay. Determination is a firm decision that you take to do something. It means sticking firmly to your decision and trying till you succeed. Determination का मतलब होता है दृढ़ निश्चय. So determination is the firm decision that you take to do something. Determination, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू शुड बी डिटरमाइंड. ओके, आप जिस चीज़ को करने के लिए अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो यू शुड डू डैट टिल यू सक्सीड. आपको तब तक उसे करते रहना चाहिए जब तक आप सफलता ना पा लो. ओके, इट मीन्स टेकिंग फर्मली टू योर डिसीजन. अपनी डिसीजन पे फर्मली उसे दृढ़ किए रहो कि नहीं मुझे ये करना है. एंड वॉट एवर सर्कमस्टांसेज, वॉट एवर डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग, यू डोंट गिव अप. ओके, a determined person does not change his mind even when he faces difficulty. If you have determined ones that you have to do, you cannot change your mind even you are facing lot of difficulties. Okay, children, everybody has an ambition. Okay, yes, everybody has an ambition. सबके पास कोई ना कोई एक ambition होता है, एक aim होता है. Some of you might want to become a doctor. Some may want to become an engineer or a dancer or a sport person. Okay, for becoming what you want, you have to work hard and get over all the difficulties. Yeah, everybody has an ambition, and some of you want to become teacher, some of you want to become an engineer, some of you want to become dancer, sport person. Okay, so if you want to do something, you have to determine. Okay, and you have to work hard to achieve your goal. Okay, so if once you have determined that you have to achieve your goal, whatever difficulties you are facing, don't give up. Okay, and keep your hard work. Okay, so here we will read the story about Eklavya. Eklavya also wanted to become a archer, and he faces a lot of problems. ठीक है, but he never give up. यहाँ भी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एकलव्य की, जो एकलव्य से रिलेटेड, उसके साथ भी उसने अपने आप को एक अच्छा तीरंदाजी और धनुषधारी बनाना चाहा. उसके लिए उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो अपने एम को अचीव किया. सो सी हाउ. Once there was a boy who belonged to a low caste and poor family. Eklavya, he belonged to a low caste and a poor family. The boy wanted to become an archer. He wanted to become an archer. He went to a famous guru, Guru Drona, but the guru refused to teach him. He went to Guru Drona and he request him that कि वो उसे धनुष की विद्या सिखाएं, बट गुरु द्रोणा रिफ्यूज्ड हिम. उसे मना कर देते हैं कि that he will not teach him the art of archery. The boy became sad but decided not to give up. Eklavya become sad, but he decided that he will not give up, and he made a clay idol of Guru Drona and worshipped it every day to get his blessing. अपने एम को पाने के लिए जब गुरु द्रोणा ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया और अपने एम को पाने के लिए एकलव्य ने गुरु द्रोणा की मिट्टी से एक प्रतिमा बनाई, क्ले आइडल बनाया, एंड ही वर्शिप्ड एवरी डे टू गेट हिज ब्लेसिंग. और अपनी प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले वो हर सुबह भगवान उनकी गुरु द्रोणा की पूजा करता था टू गेट हिज ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए. टू लर्न आर्चरी ही सीक्रेटली वॉच द गुरु
when he taught archery to the prince of the Kauravas and the Pandavas. अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस को करने के लिए वो छुप के गुरु द्रोणा को देखा करता था, जब गुरु द्रोणा कौरवास और पांडवास के राजकुमारों को आर्चरी की ट्रेनिंग दिया करते थे. The boy faced a lot of problems, but he kept on working hard. उस बॉय को, क्लव्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बट ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड. लेकिन वो अपनी कड़ी मेहनत को करता रहा और अपनी प्रैक्टिस को करता रहा. स्लोली डेज, मंथ्स एंड ईयर पास. धीरे धीरे दिन बीत गए, महीने बीत गए और साल बीत गए. वन डे द गुरुज पेट डॉग रीच्ड द बॉयज प्लेस. एक दिन अचानक से गुरु द्रोणा का जो उनका पेट डॉग था वो बॉय मीन्स एकलव्य के प्लेस पे पहुंच गए जहाँ से वो अपनी ट्रेनिंग किया करता था. सीइंग इट्स मास्टर्स आइडल इट स्टार्टेड बार्किंग. और जैसे ही उसने अपने मास्टर की प्रतिमा आइडल को देखा, वो गुरु द्रोणा का पेट डॉग भौंकना शुरू कर देता है. स्टार्टेड बार्किंग. Sitting at a distance from the dog, the boy shoot 7 arrows. और sitting at a distance from the dog, जहाँ उनका पेट डॉग भौंकना शुरू करता है, उससे कुछ दूरी पे एकलव्य अपनी प्रैक्टिस कर रहा था. और जब उसने देखा कि गुरु द्रोणा का जो पेट डॉग है वो भौंकना शुरू करता है, तो उसने अचानक से 7 एरोज को शूट किया. 7 तीरों को उसने छोड़ा. वन आफ्टर अनदर इन द डॉग्स माउथ. एक के बाद एक उस डॉग के माउथ में. ओके, सो डेट इट कुड नॉट बार्क, ताकि वो भौंक ना सके. नन ऑफ द एरोज हर्ट द डॉग. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नन ऑफ द एरोज हर्ट द डॉग. और उनमें से किसी एक तीर ने भी, एरोज ने भी उस कुत्ते को, उस डॉग को चोट नहीं पहुंचाई. देयर was not a single drop of blood. और एकलव्य ने 7 एरो शूट किए थे उस डॉग के माउथ में, बट उससे उसे कोई भी चोट नहीं लगी और ना ही एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरा. द डॉग ran towards its master. और ऐसा होने के बाद तुरंत ही वो डॉग था वो अपने गुरु द्रोणा के पास चला गया, दौड़ने लगा. When Guru Drona saw the dog, he was amazed. और जैसे ही गुरु द्रोणा ने अपने डॉग को देखा कि उसके मुंह में, उसके माउथ में 7 एरोज शूट किए गए हैं, बट सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंज बात ये थी कि उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई. He said to his student, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो उनके स्टूडेंट थे, जो प्रिंस ऑफ कौरवास और पांडवास जो उनसे आर्चरी की ट्रेनिंग ले रहे थे, what a great archer that person would be who had shot the arrows. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना महान आर्चर है जिसने इस डॉग के माउथ में 7 एरोज को शूट किया है. मीन ही केम टू द बॉयज प्लेस. और गुरु द्रोणा फिर वहाँ से उस एकलव्य के प्लेस पे आए जहाँ वो ट्रेनिंग किया करता था. द बॉय टोल्ड हिम द ट्रूथ. और उस बॉय ने उन्हें सब सच्चाई बता दी. ही प्रेज द बॉय फॉर बीइंग द बेस्ट आर्चर. और गुरु द्रोणा ने उसकी बहुत सारी प्रशंसा, बहुत ढेरों प्रशंसा की कि वो एक बहुत ही अच्छा धनुष चलाने वाला है, तीरंदाजी में सबसे माहिर है. बट ड्यू टू सम रीजन्स, लेकिन किन्हीं कारणों से गुरु द्रोणा ही आस्क्ड द बॉय टू कट हिज थंब. उससे कहते हैं कि तुम अपने अंगूठे को काट के मुझे दे दो. टू गिव इट टू हिम एज गुरु दक्षिणा. गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने एकलव्य से उसके अंगूठे को मांगा. सो डैट ही कुड नॉट प्रैक्टिस आर्चरी. इसका रीज़न ये था कि इसके बाद वो कभी आर्चरी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता था. सिंस देन द बॉय केम टू बी नोन एज एकलव्य. और तब से वो बच्चा एकलव्य के नाम से जाना गया. So children, just like Eklavya, you should also become determined to achieve your ambition. Same, okay? And you should keep trying till you succeed. और तब तक आपको मेहनत करनी चाहिए जब तक आप सफल ना हो पाए.
इस स्टोरी का जो एम था वो ये था कि वॉट एवर डिफ़िकल्टीज यू आर फेसिंग, इफ़ यू डिटरमाइंड वंस दैट यू हैव टू अचीव योर गोल, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्क। कुछ भी मुश्किलें आए आप मेहनत करते रहो, अपने हार्ड वर्क को कायम रखो और अपना मोराल कभी डाउन मत होने दो। एंड दोज जो लोग ये सारी चीज़ों को हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उन्हें कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलता है। लाइक एकलव्य के पास ना ही कोई ट्रेनर था, ना ही कोई उसे समझाने वाला था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। उसने वंस ही डिटरमाइंड दैट ही वांट टू बी बिकम अ आर्चर एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। बिना किसी गुरु के वो प्रैक्टिस करता रहा और वो इसमें सफल भी हुआ, वो उसने सक्सेस भी पाया। और गुरु द्रोण ने खुद उसको प्रेज़ किया कि डेट वो एक बहुत ही अच्छा आर्चर है, सबसे बेस्ट आर्चर है, लेकिन किसी रीज़न से उन्होंने उसके अंगूठे को गुरु दक्षिणा में मांग लिया। ठीक है, सो कुछ भी हो, ऑलवेज वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग। कभी भी ऐसा नहीं हो कि कोशिश करना, इफ़ यू विल नॉट, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। सो नेवर स्टॉप ट्राइंग and don't run away from the problems. Okay, determination gives you strength and slowly makes you perfect. अगर एक बार आप डिटर्मिनेशन से अपनी चीज़ों को करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाते हो। एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना कभी मत रोको एंड डू हार्ड वर्क। ओके।